narration and how to convert direct speech into indirect form of speech, and we have already discussed. Yes, and we have already discussed two rules, general rules. These are called general changes, means general rules. What was the first rule? That we have to delete comma and inverted comma and use a conjunction. This was the first general rule. A second general rule was that the words showing nearness are changed into words showing some distance. Isn't it? Yes, sir. For example, this will be changed into that, here into there. This will be into that. Yes, and today will be changed into that day, tonight, that night, that night, yesterday. the previous day, Very good. Tomorrow, the next day, and the next day, the following day, the following day. Next week, the following week. Very good. Hence, thence. Yes, THENCE. Thence. Hither, thither. Very good. Ago, before. And now third general rule we will discuss, and this will be the change of person. The change of person. First person singular number. I, my, me. We shall not take mine. Mine generally doesn't come into direct speech. We shall discuss my. What is the difference between my and mine? Meaning same. What is the difference? Possessive determiner. My possessive determiner, and determiner takes a noun. My chalk, my pen, my pencil, my book. Mine also possessive pronoun. Pronoun comes in place of a noun, so it will not take any noun. This is the difference. And mine will not, generally doesn't come in inverted, within inverted comma in direct speech, so we shall not take it. Plural number. We are, us. Us we shall not take. Us possessive pronoun. Changes according to subject.
second person singular plural both. You, your. What we shall not take? Yours. Very good. You. This is nominative case, that is subject. This is possessive case, and this is objective case. This is what? Which case? Nominative case. In Hindi, we know karak, 8 types of karak. In English, we know 4 types of karak, 4 types of cases. Nominative case, possessive case, objective case and vocative case. Oh, hey, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर यूज नहीं होगा, उसको अभी हम छोड़ देते हैं. So this is which case? Nominative case functions as a noun. Functions as a noun and subject. Subject. Functions as a subject. And are which case? Possessive case. It shows relation. Our classroom, our family. Okay. And us which case? Objective case. Objective case. This functions as an object. We nominative case. This functions as a subject. Us objective case. This functions as an object. इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक. मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो वर्ड जिस केस में रहेगा उसी केस में उसका चेंज होना है. लाइक वाइज यू विच केस? वेरी गुड. योर विच केस? एंड यू विच केस? What is the difference between this you and this you? How we shall recognize that this you is in nominative case as a subject and this you comes as an objective case as object. How we shall differentiate? अगर you के बाद कोई verb आता है, जैसे you read, ठीक है, अगर यू के बाद कोई वर्ब आता है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट. और अगर वर्ब के बाद यू आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम है एक्शन को रिसीव करना, सब्जेक्ट का काम है एक्शन को करना. ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन. इस बेसिक बात को हमको समझ लेना है, तो हमको नरेशन में भी सुविधा होगी और वॉइस में भी. आई टीच यू, ये यू आया है वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट. According to object, third person singular number and masculine gender. masculine समझते हैं ना? Yes, male. So what would be
Singular person, masculine gender. What would be? Here, he. Possessive case, his. Objective case, he. Very good. Now, feminine gender. She, her. हर्ष को नहीं लेंगे, वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, हाँ नहीं लेंगे उसको. Her. So how we shall differentiate here that her is possessive case and her is objective case. तो ये तो सीधे सीधी है, ये डिटर्मिनर है, ये नाउन लेगा, ये नाउन लेगा, हर फ्रेंड, और ये हर ऑब्जेक्ट है, एक्शन रिसीव करेगा, आई टीच हर, वर्ब के बाद आएगा. न्यूटर, इट, इट्स, इट. सेम प्रॉब्लम हियर. अगर इट के बाद वर्ब आता है तो इट सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद अगर इट आता है तो इट ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. अब आता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. व्हाट? They. Nominative case here, there, here, there. Now I will test you, and you are excellent students, students of 10. आप हमको यह बताइए कि what is plural of he? What is plural of it? Very good. What is plural of she? Very good. And what is the plural of his? There. Because this is possessive case and this is also possessive case. तो मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जो वर्ड जिस केस में रहेगा उसी केस में चेंज होना है. जैसे मारपीट हो गई, मर्डर हो गया, उसी प्रकार ना वहाँ FIR लॉज होता है, तो केस देखना पड़ेगा. एंड व्हाट इज प्लूरल ऑफ मी? अस. नहीं, अस. प्लूरल ऑफ मी, अस. क्योंकि मी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है और इसका प्लूरल ये अस हो जाएगा. व्हाट इज प्लूरल ऑफ माई? वेरी गुड. अब आप समझ गए. हियर नो चेंज. थर्ड पर्सन नो चेंज. तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सन फॉर्मूला है. वन टू थ्री. एंड SON. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. ठीक है. ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन. अब फोर्थ जनरल रूल वी हैव टू स्टडी. यू मे टेक स्क्रीनशॉट. सेकेंड,
general rule we are discussing. If the reporting verb नरेशन का की पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब ही होता है, इसी पर पूरा टेंस डिपेंड करता है. If the reporting verb is in present or past tense, there is no change in the tense of the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है? विदिन इन्वर्टेड कॉमा. रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ रहता है? बियॉन्ड इन्वर्टेड कॉमा. There are two separate sentences and we omit comma and inverted comma, and by using conjunction we combine these two separate sentences. एक सेंटेंस हमने लिया था कल, द टीचर सेज टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट. कल लिया था ना हमने ये सेंटेंस. हाँ, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? सेज. विच टेंस? प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने देख लिया है. आई एम सॉरी, फ्यूचर टेंस. अब हमको फ्यूचर टेंस का देखना है. माय फ्रेंड विल से टू मी यू आर wrong here. This is reported speech and this is a reporting speech. एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बदलता है. बदलता है क्या? तो रिपोर्टेड स्पीच बदलता है. क्या बदलता है? व्हाट चेंजेस? रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार. रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बदलेगा, लेकिन इसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज. ये नहीं बदलेगा. हम चाहे तो से टू को हम से टू रख सकते हैं या फिर टेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये चेंज नहीं होगा. हम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज होना है इसके अनुसार. अब आप एक बात और ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सेपरेट सेंटेंस है. सेपरेट सेंटेंस में व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा. या ऑब्जेक्ट हो जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाए. आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, वर्ब भी है ना, विल से इसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज, क्योंकि ये मोर देन वन वर्ड आया है, इसलिए हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज. ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया. कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस है तो सारे कंपोनेंट्स रहेंगे. अब आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू है. वर्ब क्या है? रॉन्ग हियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. तो निश्चित रूप से दोनों दो सेंटेंस है,
इसको बदलना है इसके अनुसार। My friend will, अगर हम टेल करते हैं तो टू का यूज नहीं करना। मी कंजंक्शन, ये कॉमा डिलीट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डिलीट करेंगे। कंजंक्शन दैट, इसलिए दैट लगेगा क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस क्यों है? कोई बात हाँ में होती है या फिर ना में होती है, या तो अफर्मेटिव होगा हाँ में या फिर नेगेटिव होगा ना में। वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसर्टिव सेंटेंस, और वहाँ कंजंक्शन दैट का यूज होता है। हमने डिस्कस किया था कि ये बदलना है इसके अनुसार। सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ लोग जानते हैं फिर भी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए केस है आपका नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। सेकेंड पर्सन बदलना है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक बात तो हो गया, लेकिन ये देखना है कि ये कौन सा केस है। ये केस है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी को हमको सब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा। यानी कि दो पॉइंट यहाँ पर आए। एक पॉइंट तो ये सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट ये कि यू सब्जेक्ट के रूप में आया है क्योंकि वर्ब के पहले है, इसलिए मी को हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जनरल रूल में जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर रहने से टेंस नहीं बदलता इसका, ये जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। ये किस टेंस में है? तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। यू के साथ में आर आ गया तो आई के साथ क्या होगा? एम हो जाएगा। ये सब बदलना नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड बदलते हैं, जैसे हियर, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो हियर किस में बदल जाएगा? देयर में। ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखेंगे। हम लोग अभी जनरल रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल रूल्स नहीं। इफ द, तो हम लोगों ने देखा की पॉइंट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, तो के लिए हम अलग से देन नहीं लिखेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है। The changes of the tense of reported speech will be as follows। टेंस को हमको देखना है, इसका टेंस कैसे बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा, वो इसका टेबल है। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट इनटू व्हाट? सिंपल पास्ट।
टेंस लिख देते हैं, यहाँ पर टेंस नहीं लिखे शॉर्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू व्हाट? Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू व्हाट? Past perfect. पास्ट परफेक्ट। And present perfect continuous into what? Past perfect. Past perfect continuous tense। ये जो चेंजेज हुआ इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेज। इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेज बोलते हैं। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, मैं 5-6 मिनट और लूंगा। कोई प्रॉब्लम आपको है क्या? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अभी 4 सब रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है? सब रूल्स में 1 2 3 4। अब नंबर 5। नंबर 5 सिंपल पास्ट इनटू व्हाट? Past perfect. वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो सिंपल पास्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का है विद इन इन्वर्टेड कोमा वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हुआ 1 into 3, राइट ना? Yes. हाँ, 1 into 3। अब पास्ट कंटिन्यूअस into what? Past perfect continuous. Very good, past perfect continuous। कुछ लोग कंटिन्यूअस के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान रखेंगे। यानी कि दूसरा हो गया चौथा में। प्रत्येक टेंस का 4 फॉर्म होता है। प्रत्येक टेंस का 4 फॉर्म, पहला हो गया तीसरा, दूसरा हो गया चौथा, तीसरा में ही होगा। No change. हाँ, रिमेन्स अनचेंज। पास्ट परफेक्ट continuous tense remains unchanged। Number note: if the reporting verb
is in past tense, तो का इंग्लिश कॉमा, the tense of the reported speech will not be changed if there is universal or general truth। क्या राइट ना? बहुत अच्छे। अब एक बात ये हो जाएगा, हाँ, नंबर 9, some model verbs will be changed if the reporting verb is in past tense। बोलिए कौन कौन सा है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और भी shall, should। Now we have enough time. I am leaving the class. You will memorize the general rules. Okay? Anything to ask? Take the screenshot. Anything to ask? No, sir. Thank you. Welcome.